अगला सवाल देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। विच इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू हीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोडाइनेमिक्स, सी इसका आंसर हो जाएगा। बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डू यू नो द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ। द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, law of conservation of energy, states that the energy is always conserved. It neither be created nor destroyed. It can only be converted or transferred one form to another. 80 नंबर सवाल देखिए, एनर्जी कैन नीदर बी जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म विच इज़ कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। What would be the change in enthalpy for an ideal gas situation if the change in temperature is given। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच थर्मोडाइनेमिक्स लॉ डिफाइंस इंट्रोपी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सेकेंड लॉ ऑफ डायनेमिक्स। Entropy, the measure of system's thermal energy per unit temperature that is available for doing useful work, because work is obtained from ordered molecular motion. The amount of entropy is also a measure of the molecular disorder or randomness of system. अब देखते हैं वेव से पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट कैरीज ए सिग्नल फ्रॉम टेलीविजन रिमोट टू डिवाइस इट कंट्रोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इंफ्रारेड इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे आर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिमिलर टू विजिबल लाइट। अनलाइक लाइट, however, X-ray have higher energy and can pass through most objects including the body. X-ray radiation is referred to as Röntgen radiation after the German scientist Wilhelm Conrad Röntgen, who discovered it on November 8, 1895. X-ray have a wavelength in range 0.01 to 10 nanometer. A wave has frequency of 50 Hz and a speed of 36 meter per second. What is the wavelength of this wave? हम जानते हैं कि v इजकल टू जो होता है n लेमडा होता है, जहाँ पे जो ये v है वेलोसिटी है, n है फ्रीक्वेंसी और लेमडा है वेवलेंथ। तो हमें क्या लेमडा निकालना है और इससे हमारा अगर डाटा फिट करेंगे तो आएगा 0.72 मीटर। अगला सवाल देखते हैं, विजिबल रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। Visible radiation was discovered by Sir Isaac Newton. The wavelength of visible light ranges from 390 to 780 nanometers. Its production source is the incandescent things such as sunlight, flames, electric bulb, and lamps, and radiation produced by molecules of ionized gases when elated. Due to this light, we can see the things. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट अ इलेक्ट्रिक वेव। अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट अ इलेक्ट्रिक वेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। रेस्ट ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, एक्सरे एंड गामा रे। नेक्स्ट है, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि इन दीज वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, देयर आर प्राइमरली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, नेमली ट्रांसवर्स वेव्स। इन ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम are perpendicular to the direction of transmission of the propagation of the wave. Some examples of transverse waves are the ripples on the surface of the water, the secondary wave of an earthquake, electromagnetic waves, and waves on the string, ocean waves. Longitudinal waves क्या होता है? In the longitudinal wave,
The vibration of the particles of medium are parallel to the direction of transmission of the propagation of the wave. The particles in the wave do not move along with the wave, though they simply oscillate back and front about their own equilibrium. Examples are sound wave in air, the primary waves of an earthquake, ultrasound, the vibration in spring, fluctuation in gas, tsunami wave, etc. In the longitudinal waves, particles vibrate in dash direction of the transmission of the propagation of wave. करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा इसका आंसर. In which type of waves do vibration move parallel to the direction of the wave movement? करेक्ट आंसर हो जाएगा longitudinal wave. Which color has the shortest wavelength? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रेड. करेक्ट आंसर हो जाएगा D, purple. Purple color has shortest wavelength and red has the longest wavelength, while the highest frequency of is of purple and least of red color in the visible light spectrum. अगला सवाल देखते हैं. Assertion and a reason are given. Assertion देखिए, when a velocity is kept constant and wavelength is halved, then the frequency is doubled. ठीक है. रीजन वेलोसिटी इजकल टू फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो क्या होगा, हम जानते हैं कि वेलोसिटी इजकल टू फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता है, यानी कि v इजकल टू n लेमडा होता है. ठीक है. अगर बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाए और वेवलेंथ को हाफ कर दिया जाए, यानी कि लेमडा बाई 2 कर दिया जाए, और फ्रिक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, तो क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा. सो दोनों करेक्ट है एंड इसका आंसर जो होगा बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सर्शन. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द मीडियम. द मीडियम इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव. हाउएवर वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव लेंथ. नेक्स्ट है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेव लेंथ? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, इट डिक्रीजेज. अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करोगे तो वेव लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, डिक्रीज होगा. आगे बढ़ते हैं. मैच करना है आपको इनको, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, नेविगेशन वेव्स, गामा रे इन कैंसर, मैच करना है इसको यूजेज के हिसाब से. करेक्ट आंसर क्या दे रखा है इसका, सी है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी है, यानी कि एक का हो जाएगा. रेडियो वेव का होगा 3, यानी कि सेलुलर फ़ोन में यूज होता है. माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2, यानी कि रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट. नेविगेशन इंफ्रारेड कहाँ होता है? ये होता है रिमोट स्विचेस, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक में. गामा रे कहाँ यूज होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय सेल्स. करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर हो जाएगा. यहाँ पे देख सकते हो इसका वेवलेंथ और यूजेस के हिसाब से दे रखा है. रेडियो वेव का वेवलेंथ होता है 1 × 10⁻⁻1 to 10⁴. इट इज़ यूज्ड इन सेलुलर फ़ोन, टीवी एंड रेडियो वेव ट्रांसमिशन. माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो देख लीजिए, और इट इज़ यूज्ड इन सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रडार सैटेलाइट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव. इंफ्रारेड का यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल एंड फॉर्मेंटिंग ऑफ पेशेंट्स. ठीक है. गामा रे का यूज होता है ड्यू टू इट हैज़ हाई ड्रिलिंग कैपेसिटी. इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल. डाइल्यूशन अकर वेयर देयर इज़ एयर प्रेशर. कहाँ पे लो एयर प्रेशर होगा वहाँ पे डाइल्यूशन होगा. डाइल्यूशन अकर्स वेयर देयर इज़ एयर प्रेशर इज़ लो. द डाइल्यूशन एंड on where the pressure is of air is high, there is the denser medium air. Next है, the compression is made at place where the air pressure is. correct answer हो जाएगा high. dilution होगा low pressure में और compression होगा high में. the figure given below shows the function of ultrasonic waves. what are these techniques called? correct answer हो जाएगा इसका अल्ट्रासोनोग्राफी. सी इसका आंसर हो जाएगा. आपने देखा होगा बच्चे का फेटस जब पता करने के लिए ऐसा किया जाता है, ये कई लोगों को पता होगा. अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनोग्राफी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस. इट इज़ एन इलस्ट्रेशन टेक्निक बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव.
It has many uses in field of medicine. It provides information about health of the fetus in pregnancy. A boat at anchor is rocked by waves whose consecutive crests are 125 meter apart. The velocity of wave moving crest is 25 मीटर पर सेकेंड. What is the frequency of the rocking boat? हम जानते हैं कि v बराबर होता है n लेमडा. हमें क्या क्या यहाँ पे दिया है? हमारे पास v है, ठीक है, v है, वेलोसिटी ऑफ द वेव लेंथ है 25 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है और वेव लेंथ हमें पता है 125 मीटर. ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 25/125 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 हर्ट्ज. करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 हर्ट्ज. ए इसका आंसर हो जाएगा. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ 50 हर्ट्ज फाइंड इट्स टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी. तो हम इससे क्या होगा, हमें क्या निकालना है? बेसिकली टाइम पीरियड निकालना है. तो 1/50 हो जाएगा ये, या फिर इसको 0.02 सेकेंड कह सकते हैं टाइम पीरियड. बी इसका आंसर हो जाएगा. Particles oscillate up and down perpendicular to the direction of propagation of wave. What kind of wave are discussed here? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ट्रांसवर्स वेव. ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. What is the frequency of wave if the time interval of vibration object is 0.04? तो क्या इसको हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड होता है या फिर टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इसको हम इस डाटा के हिसाब से रख लेते हैं. तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/0.04 सेकेंड और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100/04 हो जाएगा यानी कि 25 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा. If the time period of sound wave is 0.04 सेकेंड then the frequency सेम ही हो जाएगा इसका 25 हर्ट्ज. सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ एनी एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एट बॉटम ऑफ लेक what type of shock wave is in the water will take place? करेक्ट आंसर हो जाएगा longitudinal. If any explosion takes place at bottom of the lake, longitudinal waves are formed in the water. Which of the following is not a transfer wave? लाइट एक ट्रांसफर वेव है, ट्रांसवर्स है, रेडियो भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव भी है. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, नॉट ए ट्रांसवर्स वेव. नेक्स्ट देखते हैं. A boat at anchor is rocked by wave whose consecutive crests are 100 meter apart. The velocity of wave of moving crest is 25 meter per second. तो फ्रीक्वेंसी निकालना है. हमें पता है कि v इक्वल टू होता है n लेमडा यानी कि वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के गुणनफल के बराबर में. वेलोसिटी हमें 25 दिया गया है. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही रहने दीजिए और वेवलेंथ हमें पता है कि 100 है. तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 1/4 यानी कि 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा. 20 का आंसर हो जाएगा. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेवलेंथ. वेवलेंथ हो जाएगा. ठीक है, वेवलेंथ. विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इंक्लूड कंप्रेशन एंड स्पीलेज रिस्पॉन्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स in which the particles of the medium vibrate in the direction of the propagation of wave. Mechanical longitudinal waves are also called compression wave because the transmission of these waves creates compression and spillage inside the medium. spillage कह सकते हो, रेयर फ्रैक्शन भी बोलते हैं उसको. नेक्स्ट है the velocity of a wave is frequency एंड वेवलेंथ. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं v बराबर n लेमडा या f लेमडा इसमें लिखा है. तो ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका b. फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे f से डिनोट किया, जनरली n से डिनोट करते हुए मैंने देखा है फ्रीक्वेंसी को. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम? करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम होता है 1/f के बराबर. करेक्ट आंसर इसका d हो जाएगा. What is the wavelength of a sound wave in a medium with frequency of 840 Hz and a speed of 380 मीटर पर सेकेंड? क्या निकालना है हमें? वेवलेंथ निकालना है. हमें पता है कि v इक्वल टू n लेमडा होता है. ठीक है,
वी हमारे पास कितना दिया है, वी दिया है 380, एन हमारे पास है 840 और हमें लेमडा निकालना है। तो हम लेमडा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेमडा कैसे निकालोगे, ये 840 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 38/84 यानी कि 19/42। 19/42 को अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.45। नेक्स्ट है द वेव लेंथ इज यूजुअली इंडिकेटेड इन ग्रीक लेटर लेमडा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लेमडा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साउंड वेव एंड लाइट वेव। बोथ आर ट्रांसवर्स वेव, गलत। बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव, गलत। साउंड वेव आर ट्रांसवर्स, ये भी गलत। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल एंड लाइट वेव आर ट्रांसवर्स, ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इट इज़ द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा एच, हाइट यानी कि। द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव आर डिटरमाइंड बाई इट्स स्पेसिफिक पैरामीटर सच एज वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी and dimension. So height does not describe the nature of wave. The sound wave travel at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what will be the frequency of the wavelength? हम जानते हैं v इक्वल टू एन लेमडा होता है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। v हमारे पास है 339, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है और लेमडा हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर। अब ये 1.5 अगर इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा, कितना आएगा डी, यानी कि ये देखो डी आएगा क्योंकि इसको फिर कन्वर्ट किया है मीटर में, है ना, मीटर में कन्वर्ट किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22600 हर्ट्ज, 22600 हर्ट्ज। अगला सवाल देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज 700 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग टाइम विल टेक वेव ट्रैवल टू 7 किलोमीटर। स्पीड दे रखा है हमें, वी दे रखा है, डिस्टेंस कवर करना है इसको 7000 मीटर। 7 किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 7000 मीटर हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 7000 और बटा स्पीड है 700, तो 10 सेकेंड लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज़ डबल्ड देन इट्स वेवलेंथ विल बी हाफ्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट इज एल देन द वेवलेंथ इज गिवन बाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई एल। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और दो थ्रू इज कॉल्ड वेवलेंथ, सो हियर वेवलेंथ विल बी एल। नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाई रेडियो इंक्रीज बाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड इंक्रीज, ए हो जाएगा इसका। साउंड प्रोड्यूस्ड बाई रेडियो इंक्रीजेज बाई इंक्रीज इन इट्स एम्पलीट्यूड। इन जनरल an increase of frequency is decibels indicates an increase in amplitude by a factor of 1/10. If a wave completes 40 vibration in 2.5 seconds then its frequency is, correct answer हो जाएगा 40 वाइब्रेशन कर रहा है 2.5 सेकेंड में, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 16 हर्ट्ज हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन पर सेकेंड आप निकालोगे तो 40/2.5 करोगे तो ये आएगा 16 हर्ट्ज। 38 का आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है वेव स्पीड, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑल आर कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई फाइन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। सो ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। A sound wave produced at wavelength 2.5 meter, its frequency is 400 hertz. Find the velocity of wave. ठीक है, तो v हमारा हमें क्या क्या मिल गया, वेवलेंथ मिल गया लेमडा कितना 2.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी मिल गया, वेलोसिटी निकालना है। इन दोनों को गुना कर दीजिए, 400 इंटू 2.5 कीजिएगा तो 1000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी, बिकॉज v इक्वल टू एन लेमडा होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑन ईदर साइड फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट। ए साउंड वेव प्रोड्यूस्ड 40 crest and 40 trough in 0.3 सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ई, सी, आज 133.33 हर्ट्ज। कैसे, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40/0.3 या फिर 400/3 यानी कि 133.33 हर्ट्ज।
डैश फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द इवेंट रिपीटेड पर सेकेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द इवेंट रिपीटेड पर सेकेंड। नेक्स्ट है what is called area of high density of particles in medium during transmission of sound, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड कंप्रेशन। व्हेन ए vibrating object that produces sound in a medium, then the sound produced by it when it moves forward in the medium, then a high pressure field is produced in medium. This high pressure area is called compression. The range of compression and spill transmit the moving sound in the medium to our ears. अगला सवाल है if the distance between a crest and its consecutive trough for a sound wave is L, then its wavelength is given by, करेक्ट आंसर हो जाएगा B 2L। कैसे देख लीजिए, the wavelength of sound wave in the distance between two consecutive crest or two consecutive trough. So the length of the crest or trough are always same here. It is given that the distance between a crest and its consecutive trough for a second wave is L, so its wavelength will be 2L। आगे बढ़ते हैं। Which of the following sound wave will have the longest wavelength, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका A, wave with frequency of 100 Hz। क्यों? बिकॉज wavelength of a sound wave that has a low frequency will have highest wavelength, ठीक है। thus here the wavelength of a sound wave with a frequency of 100 Hz will be the highest। आगे बढ़ते हैं। A source of wave produces 20 crest and 20 trough in 0.4 second, find the frequency। इसका सही आंसर हो जाएगा number of vibration generated by the source of sound in 0.4 सेकेंड इज 20, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20/0.4, करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज emits wave of 0.4 meter wavelength. How long time will take it by the wave to travel 600 meter, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड। कैसे बता देता हूँ, वेवलेंथ दे रखा है v = n लेमडा होता है, हमें लेमडा निकालना है। लेमडा हमारा v/n है और फ्रीक्वेंसी हमारी 500 है, ठीक है, और लेमडा हमारा 0.4 है, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 200 मीटर पर सेकेंड आएगा। और डिस्टेंस हम जानते हैं कि टाइम जो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो 600/200 कीजिएगा तो 3 सेकेंड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द डेप्थ ऑफ ट्रॉफ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 49 का हो जाएगा एम्पलीट्यूड। डेप्थ ऑफ जो ट्रॉफ होता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। द टाइम टेकन फॉर वन ओसिलेशन एट ए पॉइंट इन द मीडियम इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाई पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू कंप्लीट एन ओसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। द एनर्जी इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई वेव्स। The frequency of wave traveling at a speed of 500 meter per second is 220 Hz। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, टाइम पीरियड हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी यानी कि 0.05 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 20 है, उसका 1 कर दोगे तो 0.05 सेकेंड आ जाएगा। Which type of wave is used to penetrate hard object at hospital and airport, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक्सरे हो जाएगा इसका सही आंसर। एक्सरे इज यूज टू पेनिट्रेट हार्ड ऑब्जेक्ट एट हॉस्पिटल एंड एयरपोर्ट। एक्सरे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स वेयरएज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑल्सो यूज फॉर MRI एंड CT स्कैन। एक्सरे आर डिसकंटिन्यूड एट एयरपोर्ट विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई millimeter स्कैनर एंड फुल बॉडी स्कैनर। व्हाट आर इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज क्या होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंफ्रारेड रेज जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्सल डिस्कवर द इंफ्रारेड लाइट इन 1800। अकॉर्डिंग टू नासा, इंफ्रारेड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड्स गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन,
microwaves and radio waves. Together, these types of radiation make up the electromagnetic spectrum. Which of the following electromagnetic wave has the shortest wavelength? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का डी, डी यानी कि गामा रे। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड बाय सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूवी रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड पर यूनिट टाइम ऑफ साउंड वेव? करेक्ट आंसर हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी। अब साउंड आ गया, नेचर ऑफ साउंड वन वेव। पहला सवाल देखते हैं, वाई कैन नॉट द साउंड इज हर्ड ऑन मून? करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून एंड द साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम। सी इसका आंसर हो जाएगा। विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द अल्ट्रासाउंड वेव? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द डिफेक्टिव लोकेशन। इसीलिए इसको यूज करते हैं ताकि कोई पता चले कि कोई ऑर्गन डिफेक्टिव तो नहीं है। द स्पीड ऑफ साउंड डैश एज इट पासिस फ्रॉम द सॉलिड टू गैसेस मीडियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज होगा इस केस में। ठीक है, जब भी सॉलिड से गैसेस मीडियम में जाएगा तो डिक्रीज होगा, और गैसेस से सॉलिड में जाएगा तो इंक्रीज होगा। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड टू गैस बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन द सॉलिड एंड मिनिमम इन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लोज इन मेटल ब्लॉक्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। Ultrasound can be used to detect the defects in metal blocks. It is used to detect the cracks and flaws in metal blocks. Metallic blocks are generally used in the construction of big structures like buildings, bridges, machines, etc. There might be cracks or holes inside the metal blocks. Through which of the following medium can sound not travel? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, बाकी सारे मीडियम में कर सकता है। कुछ स्पीड दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 332 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर होता है 1498 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड आयरन में होता है 5130 मीटर पर सेकेंड। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकता बिकॉज इट नीड्स मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स? साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ओके। साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स? साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता, बाकी इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, मैकेनिकल वेव और प्रेशर वेव तीनों कहते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ साउंड वेव? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डेंसिटी इज नॉट द क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन फॉर ए कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ साउंड वेव इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम? करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी और प्रेशर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। साउंड कैन ट्रांसमिट फ्रॉम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन, यानी कि सॉलिड में करता है, गैस में भी करता है, फ्लूइड में भी करता है। एट वॉट स्टेज शुड द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड में भी करता है, गैस में भी करता है, फ्लूइड में भी करता है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। द टेक्निक यूज्ड टू ऑब्जर्व नॉइज बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड प्रोटेक्शन। द टेक्निक यूज टू ऑब्जर्व नॉइज बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड साउंड प्रोटेक्शन, जैसे कि ऑडिटोरियम वगैरह में यूज किया जाता है। व्हेन दे आर सॉफ्ट मैटर they observe due to the deformation that occur when where they are porous material, they observe by vibration of the air contained in the pores। अगला सवाल देखते हैं, what causes sound? करेक्ट आंसर है इसका बी, द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन causes the sound। ठीक है, sound is a form of energy that arises due to vibration or disturbance and is heard by reaching the audio senses. It is necessary to have medium for the transmission of sound. There is no transmission of sound in vacuum. Compression and rarefaction are due to variability of, correct answer हो जाएगा air pressure। air pressure waves are made up of compression and rarefaction, and compression happens when the molecules are forced or pressed together. Rarefaction is just the opposite, it occurs when molecules are given extra space and allowed to expand. Hence, the compression and rarefaction are due to the variability of the difference of the air pressure.
साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा इन डेसिबल, डेसिबल में मेजर किया जाता है इसको, डीवी से इसको डिनोट किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड होता है। साउंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल वेव। साउंड इज द मैकेनिकल वेव एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। मैकेनिकल वेव्स आर वेव दैट रिक्वायर a medium in order to transport their energy from one place to another. When the sound passes through the air, the particles of the air vibrate in the direction of propagation of wave, correct answer हो जाएगा इसका A, ठीक है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ दैट प्रोड्यूसेस हियरिंग, साउंड इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव दैट प्रोड्यूसेस हियरिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। What are the sound waves in air? करेक्ट आंसर हो जाएगा longitudinal wave. Sound waves in air and any fluid medium are longitudinal waves because particles of the medium through which the sound is transported vibrate parallel to the direction of propagation of wave. Sound waves travels following, correct answer हो जाएगा A, different speeds in different mediums. Sound waves travel at different speed depend upon the different medium through it goes, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव देखते हैं। फॉर ह्यूमंस ऑडिबल वेव्स आर दो वेव्स जिसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है ऑडिबल। उसके बियॉन्ड जो है उससे ऊपर होगा 20,000 से ऊपर तो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक, और नीचे होगा तो इंफ्रासोनिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट देख लीजिए, द साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी between 20 to 20,000 hertz are called sonic wave. The wave of this frequency are known as audible waves. The sound wave having frequency higher than 20,000 are called ultrasonic, and the sound waves having frequency lower than 20 hertz are known as infrasonic waves. Both infrasonic and ultrasonic waves are not audible to human being. What is the lowest frequency of sound that can be heard by human being? Correct answer हो जाएगा 20 hertz. 20 hertz. What is the intensity level of very low audio sound? Correct answer हो जाएगा B, 0 decibel. The intensity of sound is measured in the decibel. The intensity of a very low audio sound is 0 decibel. The standard sound level for human is 60 decibel. What is the frequency of ultrasonic waves? Correct answer हो जाएगा 20 to 20 किलोहर्ट्ज, मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। और अल्ट्रासोनिक का पूछ रहा है ना, तो 20,000 हर्ट्ज कह लो या फिर 20 किलो हर्ट्ज कह लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो है यूज़ क्या क्या होता है, सिग्नल सेंडिंग में होता है, डिटेक्टिंग द डेप्थ ऑफ द सी में होता है, फिर होता है इसका क्लीनिंग द कंपोनेंट ऑफ प्रीशियस क्लॉथ्स, एयरप्लेन्स एंड वॉचेस, इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम इनसाइड द मिल्क, ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस एंड डिटेक्शन ऑफ ब्रेन ट्यूमर में इसको किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, सी इसका आंसर हो जाएगा। Man cannot tolerate very high sound. What is the highest sound level that man cannot hear? Correct answer हो जाएगा इसका B, 80 decibel is considered as the highest safe exposure level for human. The permissible time for safe listening decreases as sound level increases. Sound waves with high frequency below the audible range are called, correct answer हो जाएगा infrasonic, ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 22,000 हर्ट्ज, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज तक सुना जा सकता है। 22,000 एक अल्ट्रासोनिक हो जाएगा जिसे ह्यूमन भी नहीं सुन सकते हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव? दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज। Sound wave travels at a speed of 340 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेव लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। फ्रिक्वेंसी क्या होगी? फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 340/2 यानी कि 170 हर्ट्ज। बी इसका आंसर हो जाएगा। V इक्वल टू एन लेमडा से निकाल सकते हो। अच्छा ये सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर देना, इससे क्या होगा 17,000 हर्ट्ज आ जाएगा, यानी कि ए इसका आंसर होगा। हमेशा ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ, बैट प्रोड्यूस करते हैं
अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो चमगादड़ होते हैं ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और टारगेट से जब रिटर्न आता है तो उनको पता लग जाता है कि उनका जो प्रे है कितने दूर पे है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इज़ ग्रेटर देन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। पहला है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी 343 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउंड वेव इज़ नॉट करेक्ट, इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 330 to 350 मीटर पर सेकेंड, ये तो सही है। दीज आर मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव नहीं होते हैं ये, हाँ ये मैकेनिकल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम टू ट्रैवल, ये गलत है, और ये गलत पूछा है हमसे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मीडियम इनको चाहिए, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मैकेनिकल वेव। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे घटाओगे तो साउंड पे असर करेगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाई प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द साउंड स्पीड, अच्छा नहीं करता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेज फॉर 1 degree Celsius, then velocity of sound increases with 0.61 meter per second in the medium. What is the approximate value of speed in sound in air, करेक्ट आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट पूछा है, एक्चुअली ये 332 मीटर पर सेकेंड से होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 25 डिग्री पे होता है 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी कुछ स्पीड दिया है, देख लेना। If the frequency of sound wave is increased at a given velocity, what is the effect on its wavelength, करेक्ट आंसर हो जाएगा its wavelength will decrease। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, a sound wave has a frequency of 3.5 kilohertz and its wavelength is 0.1 meter, सो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। तो हमें स्पीड निकालना है पहले। हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ एन लेमडा, यानी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वी हमारा निकल जाएगा, हमारा 3.5 किलो हर्ट्ज दे रखा है, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 3500 हो जाएगा, और हमारा वेवलेंथ है 1/10 मीटर, यानी कि 350 मीटर पर सेकेंड का आएगा हमारा स्पीड। और इसको हम हमें स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड, डी इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 331 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 331 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 331 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। ए साउंड सोर्स सेंड ए वेव ऑफ 600 हर्ट्ज, दिस प्रोड्यूसेस ए वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन दिस क्वेश्चन इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी बराबर एन लेमडा होता है। वी हमें निकालना है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 600 और वेवलेंथ है 3, तो यानी कि हमारा स्पीड आ जाएगा 1800 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ए ट्रांसमिशन स्टेशन ट्रांसमिट वेव्स विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 71 × 10⁴ हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ हम जानते हैं, वी हमारे पास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, तो वेवलेंथ होता है क्या, v/n होता है। v कितना है 3 × 10⁸ है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 71 × 10⁴ है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 10⁴ जो है इसको काट के 4 कर देगा, और 3 जो है 71 को ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग करेक्ट आंसर होगा इसका सी, यानी कि 422.5 मीटर। Calculate the wavelength of a sound wave that has a frequency of 200 Hz and its speed in a given medium is 400 मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा वेवलेंथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 44 का हो जाएगा दोस्तों डी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर इन समर दैन विंटर,
ठीक है, मोर इन समर दैन विंटर. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन समर दैन इन विंटर बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. द स्पीड ऑफ साउंड इज 0.61 meter per second when the temperature increases in air at 1 degree Celsius. The velocity of sound wave is lowest in the gases and the highest in solid. Dash determines the speed of sound in a medium. Correct answer हो जाएगा C. Nature of medium determines the speed of sound in a air. Medium. Nature of medium determines the speed of sound in medium. Speed of sound in different medium क्या होता है? Sound travels faster than solid through solid and slower through gases. This is because elasticity of solids is much greater than that of the liquid and elasticity of liquid is much greater than that of the gases. अगला सवाल देखते हैं. Speed of sound is c in sea water dash it occurs. करेक्ट आंसर हो जाएगा 1531 मीटर पर सेकेंड. बाकी का भी देख लीजिएगा. Which of the following statements are true false about the speed of sound in different medium at on 25 degree Celsius. पहला देखिए, इन वाटर मेरीन द स्पीड ऑफ साउंड इज 1531 मीटर पर सेकेंड. इन एथेनॉल द स्पीड ऑफ साउंड इज 1200 किलोमीटर पर सेकेंड. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओनली. यहाँ पे 1200 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, 1200 मीटर पर सेकेंड आएगा. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. A maritime survey ship sends a sound wave to the ocean floor which receives an echo or resonance after 2.5 seconds. The speed of sound in sea water is 1200 meter per second. What is the depth of ocean? Correct answer हो जाएगा 49 का D यानी कि 1500 मीटर. Let the depth of sea is equal to h meter. Distance traveled by sound wave in 2.5 second is 2. ठीक है, साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 1200 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस इसको गुना कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 1500 मीटर. अगला सवाल है, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स टू द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू ट्रेवल एट. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सुपरसोनिक. 1 मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो सुपरसोनिक हो जाएगा. एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज कॉल्ड. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सुपरसोनिक. स्पीड्स ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर नोन एज. करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस. ए है, इन हीलियम गैस द स्पीड ऑफ साउंड इज 965 किलोमीटर पर सेकेंड. इन हाइड्रोजन गैस द स्पीड ऑफ साउंड इज 1284 मीटर पर सेकेंड. तो पहला तो गलत है, किलोमीटर तो नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड होगा. तो पहला गलत है, बी सही है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली बी इज़ ट्रू. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है, द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. पहला, द स्पीड ऑफ साउंड इज इन ऑक्सीजन इज 316 मीटर per minute. The speed of sound is in distilled water is 1498 मीटर पर मिनट. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि the speed of sound is 316 मीटर पर सेकेंड in oxygen gas at 25 degree Celsius and 1498 मीटर पर सेकेंड at 25 degree Celsius in distilled water. So neither A nor B is correct. Which of the following statement are true false about the speed of sound in different mediums at 25 degree Celsius. In sea water the speed of sound is 1531 km per second. In water distilled the speed of sound